Hi guys, welcome to this particular lecture. We were discussing the 2024 paper for introductory statistics for economics. That was totally according to your NEP batch. So we've discussed question number 1 and 2 from there. So this was the discussion on question number 1 and 2. Now we will move on to discuss question number 3 and similarly question number 4. All right. So let's see. So once we're done with that, we will be done with section number A for the paper. So question number 3, we want to go ahead and start discussing that. Let's see. So this one is question number 3. All right. So let's first read the question and then let's see how will we go about it. So सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 1%. So third part number A, this is for 5 marks, and then third part number B. It's written that this is for 10 marks. So this third question is in total for 15 marks. Okay. So 1% of all the individuals in a certain population are carriers of a particular disease. ठीक है. So let's say किसी भी disease का carrier होना, उसको हम लोग लिख सकते हैं. Let's say we write it like this. That probability that you are carrier of the disease, that is 1%, matlab 0.01. C means you are the carrier of the disease. Okay. So this is the first piece of information that is given to us. उसके बाद क्या दिया हुआ है? A diagnostic test for this disease has a 90% detection rate for carriers. तो मतलब अगर आप सच में कैरियर हो तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि यू आर द कैरियर, दैट इज विद प्रोबेबिलिटी 90%. एंड अ 5% डिटेक्शन रेट फॉर नॉन कैरियर्स. मतलब अगर यू आर एक्चुअली अ नॉन कैरियर and they will be able to identify properly that you are a non-carrier, that is with the probability 5%. ठीक है. So detection हो पाएगा. Suppose so diagnostic test for this disease has a 90% detection rate. Detection rate को detection ही समझते हैं. This detection is 90% and 5% detection rate for non-carrier. ठीक है. Now, suppose the test is applied independently to two different blood samples from the same blood samples from the same randomly selected individual. Okay, draw the tree diagram for this question. Then what is the probability that both tests yields the same result? If both tests are positive, what is the probability that the selected individual is indeed a carrier? Okay. Chalo. So probability, D means let's say detection happens. So probability that detection happens given that you are a carrier is 90%. That is given to us, which is 0.9. Probability कि there is a detection when you are a non-carrier. ठीक है. Detection given that you are not a carrier. Yeah. So that is 5%. मतलब 0.05. C bar meaning not a carrier. ठीक है. So this is the situation. अब इसके बाद क्या क्या हुआ है? There is a test that is done to two different blood samples from the same randomly selected individual. इस चीज का पहले तो आपको ट्री डायग्राम बनाना है. ठीक है. तो देखो सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल होगा
जो इंडिविजुअल है हो सकता है वो कैरियर हो असली में या फिर नॉन कैरियर हो, राइट। और वो इंडिविजुअल का टाइप ऑफ बीइंग कैरियर नॉन कैरियर वो तो सेम ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी बार टेस्ट कर लो, उसकी जो ओरिजिनल टाइप है वो तो यही रहेगी, राइट। बट हाँ, बाद में टेस्ट के रिजल्ट्स बदल सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, with probability 0.01 he is a carrier, with probability 0.99 he is not a carrier, ठीक है। देन जो दो टेस्ट लिए गए हैं, हो सकता है उसमें डिटेक्ट हो जाए, दोनों में डिटेक्ट हो जाए। हो सकता है कि एक में डिटेक्ट हो एक में डिटेक्ट ना हो सकता है पहले में डिटेक्ट ना हो, डी बार, और इसमें डी हो सकता है दोनों में ही डिटेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीजें हो सकती हैं, हो सकता है दोनों टेस्ट में डिटेक्ट हो जाए, पहले में डिटेक्ट हो जाए दूसरे में ना हो, पहले में ना हो दूसरे में हो जाए, एंड देन दोनों में डिटेक्ट हो जाए। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। दिस इज लाइक अ ट्री डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। दो टेस्ट कंडक्ट हुए, टू टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड। तो रिजल्ट क्या होगा, या तो डिटेक्ट हो जाए या तो ना डिटेक्ट हो, ठीक है। ऑल राइट। सो डी मीनिंग डिटेक्ट होना, डी बार मीनिंग नॉट डिटेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ दिस इज पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर वन ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट नंबर टू क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टेस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों टेस्ट सेम ही रिजल्ट दें, ठीक है। तो दोनों टेस्ट या तो डिटेक्ट डिटेक्ट बता दें, या फिर दोनों टेस्ट नॉट डिटेक्ट हो, राइट। सो बोथ टेस्ट have same results. We want this probability, ठीक है। तो या तो दोनों डी हो जाएं या दोनों नॉट डिटेक्ट हो जाएं, ठीक है। सो हो सकता है कि इंसान कैरियर हो सकता है इंसान नॉन कैरियर हो, ट्रू पर्सनैलिटी टाइप में, ठीक है। तो क्या होगा, तो केस वन क्या है, पर्सन इज अ लेट्स से कैरियर, ठीक है। तो आप ये बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, probability that both have the same result given that this person is a carrier, and because दोनों टेस्ट रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये क्या हो जाएगा, probability of D given C times probability of D given C, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ये हो जाएगा। और इसकी probability है 0.9, तो ये 0.9 इंटू 0.9 हो जाएगा विच इज 0.81। ये तो हो गया दोनों डिटेक्ट कर लिए, या फिर दोनों नॉट डिटेक्ट हो गिवन सी। इसके लिए भी हम लोग सेम लॉजिक लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिटेक्ट गिवन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिटेक्ट गिवन सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, दैट गिव्स मी 0.01। ये हो गया। अगर वो इंसान कैरियर होता तो क्या प्रोबेबिलिटीज होती। अब मान लो वो इंसान कैरियर नहीं है, नॉन कैरियर, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी दैट डिटेक्शन हो जाए गिवन नॉन कैरियर, वो क्या हो जाएगा, अगेन probability of D given you are not a carrier times this। ये डिटेक्शन की probability given that you are a non carrier कितना बताया है, 0.05। तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू 0.05, दैट इज गोइंग टू गिव मी 0.0025, राइट।
And similarly, probability of not detecting given that you are not a carrier. वो कितनी हो जाएगी? 0.95 इंटू 0.95. सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो आई थिंक what you should be getting is, just a moment. What we should be getting is 0.95 into 0.95. Yeah, that gives me 0.9025. राइट? तो ये तो हमने जो भी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज थी वो हमने निकाल दी और दोनों केसेस में निकाल दी। तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ टेस्ट्स गिव द सेम रिजल्ट, वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी दैट यू आर अ कैरियर, and within that there are two cases, right? What are the cases? Ki you either get dd given c or you get d bar given c. या तो आप ये केस कंसिडर करो, प्लस probability that you are not a carrier, and then here also you get two cases. Probability that both get detected, in case this happens, both get not detected in case this happens. तो आपको ये probability देगा किस चीज की? This will give you the probability of both tests giving us the same result. ठीक है? So now the numbers that I have is probability of being a carrier is 0.01, and then we will do these two summations, which is 0.81 plus 0.01, 0.81 plus 0.01, and then plus 0.99 times. अब इसमें हमें ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई ऐड करने हैं, 0.9025 एंड 0.0025. 9025 plus 0.0025. So that gives me 0.01 times 0.82 plus 0.99 times 0.905. Yeah, not 50. Yes. So when we do that, we should be getting 0.0082 plus, if we do this, we should be getting 0.99 into 0.9050. That gives me 0.89595. And when you sum these two, 0.0082. So that should give you 0.90415. This is the probability that both the tests are going to give you the same results. This is the probability. This is the required probability that we have. All right. I hope this is okay and you should be able to do this part. So this was part number A. This is part number 2. So part number 3 is saying if both tests are positive, both tests being positive meaning they are showing that they have detected the disease, right? They have detected the disease. Okay. So डिटेक्ट कर लिया है, दैट इज व्हेन द टेस्ट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। तो अगर दोनों टेस्ट में ये आ रहा है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, कि आपको जो कैरियर है वो डिटेक्ट हुआ है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअल द इंडिविजुअल इज अ कैरियर?
So probability that the person is a carrier, given that both the tests have shown that the test is showing that it is detected. Okay. Both of it comes out to be positive. Okay. सो ये जो डिटेक्शन रेट है ना, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कैरियर हो तो 90% केसेस में वो बता देता है कि आप कैरियर हो, और अगर आप नॉन कैरियर हो तो वो 5% केसेस में बताता है कि आप कैरियर हो, राइट? सो वो एक्चुअली गलती है उसकी. सो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन पार्ट नंबर 3 इज प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली अ कैरियर गिवन दैट बोथ द टेस्ट शो पॉजिटिव, मींस डिटेक्ट. ओके. सो ये कैसे निकलेगा? दैट विल बी probability of C intersection DD, right? Given that probability of both showing DD. ये हम लोग नॉर्मल हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने आइडिया लगाया है, और यहाँ से जब हम लोग इसको बेस रूल में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ DD गिवन C, probability of C, probability of DD given C, plus probability of not being a carrier and probability of DD given not being a carrier. ठीक है. तो probability of C being a carrier is कितना? 0.01. ये नंबर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये भी नंबर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और ये भी नंबर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. ठीक है. The probability that this is detect in both the cases when you're a carrier, that turned out to be 0.81. We saw that probability of C 0.01 plus into 0.81 plus 0.99. Detect given that you're not a carrier is 0.0025. So if you solve this, you should be getting 0.0025 into 0.99. That gives you 0.002475. So 0.0081 divided by 0.010575. That gives me approximately 0.76595. तो approximately मैं इसको 0.766 लिख सकती हूँ. So what is my answer? 76.6% probability that the individual is a carrier when if both tests detect the disease. So this is your question number 3. This is how you'll have to do question number 3, first part. Okay. So this was question number 3, part number A. So this is done. Now moving on to question number 3, part number B. So let's see. This is what it is. Every part is for 2 marks each. All right. So let's see.
So this is question number 3, part B. Let X be a random variable with CDF. So this is not PDF, this is CDF, cumulative distribution function. CDF, cumulative distribution function वो दिया हुआ है. तो बेसिकली ये क्या बताते हैं कि CDF की वैल्यू, f of x की वैल्यू is 0 when x is less than 2. तो 2 से नीचे तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेता नहीं है. जब वो 2 से लेके 4 के बीच में वैल्यू लेता है तो जो पीडीएफ सीडीएफ की वैल्यू आती है वो x-2 डिवाइडेड बाई 2 होती है. एंड जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होती है तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 1. सो बेसिकली क्लियर शब्दों में बात ये है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो 2 से लेके 4 के बीच में वैल्यूज ले रहा है. ठीक है. सो आपको सबसे पहले पीडीएफ बनानी है. ठीक है. तो पीडीएफ कैसे बनाएंगे? पीडीएफ बनाने के लिए सीडीएफ से जब पीडीएफ में कन्वर्जन होता है तो आप सिंपली क्या करते हो, अपने सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट विल बी ऑल राइट. सो x की वैल्यू लेस देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा. रैंडम वेरिएबल वो वैल्यूज टेक लेगा ही नहीं. सो वी विल जस्ट से दैट दिस वैल्यू इज 0. एंड फॉर वैल्यूज बिटवीन 2 and 4 यू विल डिफरेंशिएट कैपिटल एफ ऑफ एक्स. और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 राइट. सो फॉर फाइंडिंग पीडीएफ वी डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स. कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. सो स्मॉल एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1/2 whenever x is between 4 and 2, and we say that this is 0 otherwise, right? This is our PDF. ठीक है, ये हमारा PDF है. तो this is part number 1. Part number 2 बोल रहा है कि find the probability that this random variable x is taking value from 2/3 to 2/3. इसके बीच की probability बतानी है. तो अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखोगे ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. मैं अगर इसको लिखना चाहूँ ना तो एक्स इज यूनिफॉर्म. ए वैल्यू कितनी है? 2. बी वैल्यू कितनी है? 4. दैट्स ऑल. दिस इज इनफ. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन राइट. तो आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट द एक्स वैल्यू इज फ्रॉम 3 to 2/3 राइट. तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना. सिंपली पहली बात तो रैंडम वेरिएबल अब 2/3 से लेके 2 के बीच में जब वैल्यूज लेगा तो हमारा पीडीएफ कितना है? सो ये कैसे निकलता है? एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 2/3 to 3. ऐसे ही निकालेंगे ये प्रोबेबिलिटी जब निकालनी है तो राइट. तो अब आप ये देखो, अब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो पहले तो 0 हो जाएगा. 0 डीएक्स कहाँ से कहाँ तक? 2/3 से लेके 2 तक तो 0 है. फिर 2 से लेके 3 पे क्या हो जाएगा? 1/2 dx. एंड देन यू जस्ट डू दैट. तो ये वाला पार्ट तो एनीवेज 0 रहेगा राइट. प्लस 1/2 को इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 x हो जाएगा. 1/2 x and this value going from 2 to 3. So that just gives you 1/2 and then 3 minus 2 that gives you 1/2. So the probability that your random variable is between 2/3 and 3 is 1/2. This is your probability answer. Fine. ये आपका probability answer है. So this is your probability. अब इसके बाद the third part is saying what is the probability that the x value is greater than 3.5. So again ठीक है, probability that this random variable is taking a value greater than 3.5. So you'll just do the integration from 3.5 to whatever is the max possible value, which is 4, right? So f of x क्या value लेता है यहाँ पे? f 1/2 dx going from 3.5 to 4. So we will just do 1/2 x and then going from 3.5 to 4. So that is 1/2 and then 4 minus 3.5 which is 0.5.
So this is 1 by 2 into 1 by 2, which is 1 by 4. This is my probability that random variable is taking value greater than 0.3.5. ये हमारी probability है. And we are not concerned कि ये equal to है या greater है यहाँ पे भी. क्यों? Because this is a continuous distribution and we're not concerned about equality values in case of continuous distribution. ठीक है? So this is part number 3. Moving on to part number 4. Part number 4 is saying find the 60th percentile. अब 60th percentile का मतलब क्या होता है? अभी समझ लेते हैं. 60th percentile का मतलब ये होता है कि वो नंबर बता दो मुझे जिससे नीचे रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 60%. सो बेसिकली हमारा जो एफ ऑफ एक्स अगर आप प्लॉट करो तो ये 2 से लेके 4 के बीच में, और इधर ये लेता है वैल्यू 1/2. ठीक है, ये इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो अब आपको पूछा जा रहा है कि वो नंबर बताओ, वो एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो कितना हो? 60%, मतलब 0.6. ये सिंपल सा सवाल पूछा है. तो एरिया जो है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताता है आपको, राइट? सो व्हाट व्हाट एसेंशियली आर दे आस्किंग? तो आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो. सिंपली आपको पता ही है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो या तो आप ये रेक्टेंगल के एरिया के परस्पेक्टिव से चीजें कर सकते हो, या फिर आप ये देख सकते हो कि चलो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, कि वो एफ ऑफ एक्स डीएक्स करें कि यहाँ से 2 से लेके एक्स नॉट तक इंटीग्रेट जब करें तो आंसर आना चाहिए 0.6. या तो आप ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और हो सकता है कि भाई ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या होगा? हाइट कितनी है? 1/2 इंटू ये कितना होगा? x0 - 2. ये एरिया कितना आना चाहिए? 0.6. ये सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है. इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो भी आपका यही आंसर आएगा. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज 1/2. 1/2 dx, तो 1/2x गोइंग फ्रॉम 2 to x0. 2 to x0. दिस शुड बी इक्वल टू 0.6. तो ये क्या देगा? 1/2. और इधर क्या होगा? x0 - 2 इज इक्वल टू 0.6. ये दोनों कंडीशन सेम ही आ गई ना. ये और ये दोनों सेम बातें हैं. तो फिर अब आप x0 की वैल्यू निकाल लो जो इस चीज को एस्टेब्लिश कर दे. तो x0 - 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज 1.2 एंड देन दिस इज x0 इज इक्वल्स टू 2. इसमें ऐड कर लो तो ये 3.2 हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 3.2 इज इक्वल्स टू 0.6. तो ये जो नंबर है ना 3.2, 3.2 इज द 60th परसेंटाइल. तो ये 3.2 जो है वो 60th परसेंटाइल है. ठीक है, so that is your 60th percentile. So this is your this question number 4. Now question number 5 can directly be done. Probability that the random variable is taking value 3. So obviously it's a continuous distribution, और continuous distribution में probability की कोई भी एक discrete value ली जाए तो that probability is 0. So that answer is directly 0. ठीक है, because it's a continuous distribution and there is no probability at a particular point in such cases. Okay, so that is your question number 3. So this entire question number 3, so this part was from chapter number 2, this part was from chapter number you can say 3 or 4, not 3 actually, 4th, because continuous distribution. सो या टोटल इन टोटल जो है आपका 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया.